ठीक, गुड। चलो सिंपल, आप अपना एक दफा सिनेरियो बोल दो सबको, ताकि हम वो कर लें। और यस मैम। यास्मीन, ये पेपर या ये जो भी चीज है, टॉक है, इफ यू कैन शेयर, सी यू कैन जस्ट, आपसे मुझे टॉपिक भी शेयर कर दो, मैं खुद इसको इस पे इसको स्टडी मैम ये करके मैं एविडेंस ग्रुप में। बेस्ड गाइडलाइन आई थी ना 2023 में पीसीओ की, तो वहां से अच्छा, नोट्स बनाए थे। 223 में पीसीओ की एविडेंस बेस्ड है, ठीक है। विल सी, गाइडलाइन जी अगर कोई जी मैम, मैं मिलती है तो कोई पीडीएफ चेक शेयर कर करती लो। हूँ, मैं शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। हाँ, या इसका टॉपिक ही शेयर कर दो, ताकि गूगल पे या कहीं खोल के खुद भी देख लें। सो ठीक है। अच्छा सिंबल, आप अपना सिनेरियो आप बता दो, ताकि फिर हम शुरू करें क्लास। हम्म। Patient name Sadia, 28 years old, Nellipara with BMI of 36, complains of irregular periods, hirsutism, and has been diagnosed as a case of polycystic ovarian syndrome according to Rotterdam criteria. She visits fertility clinic. The task is to take detailed history and examination and to address concern and manage the patient. इसके अंदर मैरिड फॉर नहीं लिखा हुआ क्या, कि मैरिड फॉर कब के है, कितने इयर्स मैम मैरिड फॉर है? मैरिड फॉर 6 years है। ठीक है, चलो। सो इट्स अ स्ट्रक्चर्ड वाइवा, राइट? यस मैम। ठीक है, सो ठीक है, आप स्टार्ट करो बिल्कुल। I will first introduce myself to the patient and then will confirm her biodata and her details. Will address her concern and will tell her that I'll take some. I need to take some information regarding her problem, and then we'll examine her and will, if further investigations are needed, I will do that and will confirm that I'll maintain her confidentiality. Will ask her to elaborate her history of present illness, that when her period became irregular, and what was how was her previous cycle, when was her last menstrual period, and what is her age of menarche, and how is her flow, to exclude or to know about oligomenorrhea, and we'll ask her about any intermenstrual bleeding, when was her last pap smear taken, and will ask her marital history regarding the duration of her marriage, whether it's her and her husband's first marriage, are they living together, does they practice any sort of contraception, and what is frequency of intercourse per week, and is she aware of about her fertile days, any she has any coital problem or not, and regarding we'll ask her if I can ask her about her partner, whether he's fit and well. He has done investigations. Are they normal or not? And we'll ask her about any medical history of concern like diabetes mellitus and hypertension, and then any surgical history of concern, history of allergies, and smoking or any intake of drugs, and will rule out any family history of ملايخة diabetes mellitus or انت polycystic ملايخ ovaries مش in her family. Will rule out any sort of stress by taking her socioeconomic history. Then we'll examine my patient, especially looking for her BMI, and her blood pressure, and any signs of hirsutism, acne, and we'll then examine her, do her detailed systemic examination, and then do her abdominal examination for the any abdominal mass, and then or abdominal pelvic to rule out any abdominal pelvic pathology, and then we'll do consider her investigations, and then we'll concern our patient regarding her diagnosis. Ma'am, proceed करूं? आप कर लो प्रोसीड। अभी हमारा, अभी मतलब ये अभी तो आपने सिर्फ आउटलाइन से बोली ना, ये तो बड़ा ही डिटेल्ड आपका केस है। ये कोई इतना शॉर्ट केस नहीं है, आपने तो बस जल्दी जल्दी थोड़ा सा कवर कर दिया इसको। इसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा और आप इलेबोरेट करोगे ना, इट्स अ केस ऑफ सबफर्टिलिटी एंड इट्स अ केस ऑफ पीसीओ। एक और भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको सिनेरियो में ही डायग्नोसिस दे दिया गया है। तो इनफ्रीक्वेंट साइकिल्स भी हैं, और आपने इसके अंदर मैरिड फॉर 6 इयर्स है।
तो आपने इसमें एक फर्टिलिटी की भी हिस्ट्री लेनी है, आपने इसमें पूरा ये पीसीओ का काफी इलेबोरेटेड किस्म की हिस्ट्री लेनी है, आपने तो बिल्कुल ही थोड़ी सी ली है, मतलब आपने तो उसको किया ही नहीं कवर। मैम मैंने तो इसलिए ये उसको ज्यादा एलिब्रेट नहीं किया कि ऑलरेडी नोन पीसीओस था, तो वो हाइपरथायराइडिज्म या उसकी तरफ इसलिए मैं नहीं गई। हाइपो वो हाइपोथायराइडिज्म या वो कुशिंगॉइड फीचर्स या स्टेरॉइड इनटेक या ये चीजें, इसीलिए मैंने फिर डिटेल इससे नहीं ली, या हर्सुटिज्म के जो कॉजेज हम नहीं, हाइपर एंड्रोजनिज्म में करते हैं। वो तो चलो ठीक है, और एंडोक्राइन कॉजेज नहीं, लेकिन हाइपोथायरॉइड तो इसके साथ अटैच्ड होता है। पीसीओ के अंदर मोर देन 12 to 15% ऑफ पीसीओ पेशेंट्स हैव हाइपोथायरॉइड एज वेल। सो इसके और साथ में आपने पूरी सब फर्टिलिटी, क्या पता मेल आपने तो पेशेंट को ट्रीट करना है ना, बेशक उसको पीसीओ तो है, बट आपने तो यस एज अ मैम। होल पेशेंट को ट्रीट करना है। तो पीसीओ के साथ तो बहुत सारी चीजें और अटैच्ड होती हैं, आपने वो सारी हिस्ट्री देखो, पीसीओ ही सिर्फ आप देख लो ना, ठीक है आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल की हिस्ट्री तो लेनी है, वो और थोड़ी सी डिटेल्ड, आपने वो थोड़ी सी कम डिटेल ली थी, लेकिन उसको हम थोड़ा सा और डिटेल लेंगे। उसके बाद आपने इसके अंदर हाइपोथायराइड की हिस्ट्री, आपने पीसीओ के साथ डिप्रेशन अटैच्ड होता है, इसके अंदर के मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स अटैच्ड होते हैं, ये तो एक पूरा मेडिकल सिंड्रोम है ना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो है। तो इसको इसके इसके अपने इतना कुछ है। उसके अलावा ये कि फिर फर्टिलिटी को, मेल फैक्टर को पूरा आपने रूल आउट करना है। और मतलब अब तक की क्या इन्वेस्टिगेशंस, बिकॉज इट्स नॉट ओनली पीसीओ दैट यू नीड टू ट्रीट फॉर सब फर्टिलिटी, हो सकता है इसका कोई ट्यूबल फैक्टर एडेड हो। तो आपने एक सब फर्टिलिटी की पूरी भी हिस्ट्री लेनी होगी। ठीक ठीक है। है, अपेरेंटली अगर देखा जाए तो ये दिस अ वेरी इजी केस, वेरी फ्रेंकली, ये कोई इतना घूम फिरा वाला घूमने वाला केस है नहीं, इट्स, लेकिन इसके अंदर पास होना या अच्छे नंबर लेना इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि हर बंदा वहां प्रिपेयर्ड आएगा, एवरीवन वहां उस लेवल तक जो पहुंचा उसके अंदर, उस बंदे ने, उस कैंडिडेट ने उसकी सब फर्टिलिटी की हिस्ट्री भी अपने फिंगर टिप्स पे की हुई है, उसने पॉलिसिस्टिक ओवरी की हिस्ट्री भी अपने फिंगर टिप पे, इट्स अ वेरी, ये तो बड़ा एक इजी से सिनेरियोज हो गए ना, वरना मुश्किल तो वो होते हैं जैसे कोई कोई हम बीच में एपिलेप्सी ले लो, जो हम नॉर्मली बहुत इजी, बहुत ज्यादा नहीं डील कर रहे होते, लेकिन ये तो वो है जो कि शायद हर पेशेंट को हमारे पीसीओ के साथ वो आ रही है और उसको आपने डील करना है। तो इसकी अगर आप दोबारा से हिस्ट्री बोलना चाहो, बिकॉज इसमें हिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हिस्ट्री होगी तो आपको, आप उसकी सब फर्टिलिटी को भी मैनेज कर सकोगे ना। पॉलिसिस्टिक तो साथ करना ही है मैनेज, लेकिन मेनली तो ये है कि आप उसके साथ साथ फर्टिलिटी को भी मैनेज करोगे। ठीक है, तो अगर इफ यू वांट टू डू इट अगेन, आप दोबारा से पूरी हिस्ट्री बोलो, वरना फिर मैं आपको साथ बताती हूँ। सादिया ने कोई बात करनी है, जी सादिया। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अरूबा। वालेकुम मैडम मैं अस्सलाम। ये पूछना चाहती हूँ, स्ट्रक्चर डिस्कशन में वैसे भी हमें डायग्नोसिस तो उन्होंने दे दिए, अगर हम बिल्कुल मेडिकली ही इसको एक्सप्लेन करते जाए, आई विल इंक्वायर अबाउट हर मैरिटल स्टेटस, आई विल इंक्वायर अबाउट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पीसीओज, आई विल इंक्वायर अबाउट व्हाट फर्टिलिटी आर द इस। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ पीसीओ? हाँ। मैरिटल स्टेटस तो चलो उसने दे दिया, मैरिड फॉर 6 years है, लेकिन इस तरह नहीं, देखो बात ये कि ठीक है, आई आई अंडरस्टैंड वहां टाइम कम होगा, लेकिन असल में वो बात है कि इस कम टाइम में जो बंदा उस पेशेंट को मैनेज करके उठेगा, उसके ही मैक्सिमम नंबर आएंगे, ठीक है। और ये वही स्टेशन है कि इसमें अगर आप अच्छे मार्क्स लोगे, लाइक मे बी 70-80 का टारगेट करके जाओगे, तो बाकी स्टेशन भी कवर हो जाएंगे। तो अब इसके अंदर आपने देखो इसके, इट्स नॉट जस्ट पीसीओ, इट्स अ पेशेंट दैट यू नीड टू ट्रीट, बार बार मैं बताऊंगी, इट्स नॉट ओनली द डिजीज दैट नीड्स द ट्रीटमेंट, इट्स अ पेशेंट, यानी कि आपने पेशेंट का मसला हल करना है, आपने डिजीज को ट्रीट सिर्फ नहीं करना, पेशेंट का मसला जो है वो है वांट्स टू कंसीव एज वेल, शी इज अ केस ऑफ पीसीओ, जो कि सब फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट के वर्कअप में डायग्नोज हुई, लेकिन उसका साथ में सब फर्टिलिटी भी है मसला। और क्विकली देखो, अगर आपने फिंगर टिप्स पे किया होगा तो आपको पूरी हिस्ट्री में आपको आई थिंक नॉट मोर देन 2 to 3 minutes जिसमें यू विल कवर एवरीथिंग। इसको अगर मैं आपको बताती हूँ, इसके अंदर आप देखो, एक तो ये जो इतनी लंबी लाइन हमेशा, वैसे मैंने नोट किया क्लास में कि हर बंदा, आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, विल मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, विल आस्क अबाउट द टेंडेंट्स, विल, व्हाई आर यू वेस्टिंग ऑन योर टाइम ऑन ऑल दीज थिंग्स? आप क्विकली बोलो कि ठीक है, आई वुड लाइक टू टॉक टू द कपल, दैट इज इट। कपल का मतलब यही है कि हस्बैंड और वाइफ मेरे सामने बैठे हैं, ठीक है, व्हाट कॉन्फिडेंशियलिटी एंड व्हाट नॉट कॉन्फिडेंशियलिटी।
और उसके बाद आप कहोगे आफ्टर इंट्रोडक्शन आई विल कंटिन्यू एंड द इन्फॉर्मेशन दैट आई एम गिवन आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, और उसमें आप फिर करोगे कि इस पेशेंट के अंदर पर्टिकुलरली yes, you will start with that if they are living together or not. It's the first marriage of the couple. Any problem in intercourse, and then any investigations. She has been diagnosed as PCO according to the Rotterdam criteria. After that, other than that, I would like to know if she got her husband's semen analysis done or not. And if there was any problem in this or not, and then I would like to know tubal status, if any test was done for it or not. Then going further, I would like to know about the infrequent cycles which are mentioned in the case scenario given, the day, the year of menarche, and then initially how were the periods, and then now the change in the periods that she has noticed, and how infrequent they are, right? उसके बाद इसके साथ ही अगर आप कर दो हाइपोथायराइड के सिम्टम्स ऐड कर दो कि आई वुड लाइक टू नो एनी हीट और कोल्ड इंटॉलरेंस रिलेटेड to the if she has been diagnosed with a case with a hypothyroid problem as well, or the thyroid tests have been done, or she's already on any medication or not. And then uske baad quickly if she had any previous surgery or not, any tuberculosis, medical disease, or any other metabolic disease as well, और उसके बाद आप husband की थोड़ी सी डिटेल, और एंड पे आके if you want to क्योंकि if there is PCO there is weight gain, देयर इज ऑब्वियसली एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, उसके अंदर हम बेशक हर्सिटिज्म की बहुत ज्यादा डीटीबी ना जाए बिकॉज उन्होंने डायग्नोसिस दिया हुआ पीसीओ का, लेकिन आप क्विकली उसमें वेट गेन का बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं जिसमें थायराइड का भी है, लेकिन डिप्रेशन भी एडेड है, स्लीप डिप्रिविएशन भी है उसके अंदर, मतलब तो आपने एज अ होल, क्योंकि जब आप ये पूरा कवर नहीं करोगे तो हाउ यू गोइंग टू मैनेज द पेशेंट, यू कैन नॉट मैनेज हर इफ यू डोंट नो एग्जैक्टली हर प्रॉब्लम। और ये आई थिंक इससे में 1.5 से 2 मिनट नहीं लगे अगर आपके फिंगर टिप्स पे ये पूरा नहीं एक मैप बना हुआ, जिसे कहते हैं ना माइंड मैप नहीं बना हुआ कि आपने किस तरीके से लेके चलना है, ठीक है। और उसके बाद आप क्विकली यू मूव ऑन टू द एग्जामिनेशन ऑफ अ पीसीओ पेशेंट इज नॉट अ सिंपल एग्जामिनेशन। सुंबल ने इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से किया, यानी कि ओके बीएमआई वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसके अलावा आप इसके अंदर ऐसे पेशेंट में ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है, ऐसे पेशेंट्स के अंदर थायराइड अगेन उसका मेंशन करना जरूरी है, इसके अंदर स्किन चेंजेस होती है, एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स होता है, इसके अंदर वेस्ट हिप रेशियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सारी चीजें आपने इसको रूल आउट ही नहीं की, मतलब ये तो सारा एग्जामिनेशन है जिसमें जब उन्होंने रोटरडम क्राइटेरिया दे दिया तो उसके अंदर एग्जामिनेशन ऑफ पीसीओ पेशेंट को आप नॉर्मल नहीं लोगे, इवन अगर वहां पेशेंट भी बैठा होगा तो you will have to do all these steps in her examination. You cannot just ignore thyroid in this patient, you cannot ignore high blood pressure in this patient, you just cannot ignore acanthosis in this patient. आप हिप वेस्ट रेशियो की बात किए बगैर आगे नहीं जा सकते, बड़ा टिपिकल सा बॉडी शेप होती है इन पेशेंट्स की, तो उसके ऊपर आपने जरूर बात करना है। और फिर ठीक है, और कोई चीज अगर एग्जामिनेशन में किसी के माइंड में है तो बताएं। मैम गैलेक्टोरिया के लिए Galactoria is can hardly, yes, you can do the breast examination also, but उसको एग्जामिनेशन पे अगर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में ही नहीं है तो आई डोंट थिंक एग्जामिनेशन में उसको बोलने की और भी जरूरत है। Ma'am, हिर्सुटिज्म overall को picture of acne एलिवेट hirsutism also. यस 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 यस, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, उसका मॉडिफाइड स्कोरिंग, जी जी उसकी मॉडिफाइड स्कोरिंग मैम पेरिविंकल इम्पोर्टेंट है, पेरिमेंटियल भी बिल्कुल शुरू करेंगे। बिल्कुल 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 उसकी स्कोरिंग, यस ठीक है। सो आप पीसीओ को इतने आराम से आप नहीं छोड़ सकते ना। और इम्पोर्टेंट बात एक बड़ी जरूरी ये भी है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन में तो आई थिंक वैसे तो जो स्टडीज कहती हैं इंटरनेशनली में भी 20-25% इंसिडेंस होगा, वो कहते हैं साउथ एशिया में 50% है, बल्कि बट वी ऑल नो व्हेन वी आर डूइंग आवर ओपीडीज और वी आर सिटिंग इन द क्लिनिक, तो आई थिंक 80% गर्ल्स कम विद द अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट और एनीथिंग जिसके ऊपर पीसीओ लिख दिया जाता है। तो अगर आपको पीसीओ को डायग्नोस कैसे करना है, पीसीओ का एग्जामिनेशन कैसे करना है, क्योंकि पीसीओ इज मोर ऑफ अ क्लिनिकल डायग्नोसिस देन द इन्वेस्टिगेशंस, लेबोरेटरी डायग्नोसिस से ज्यादा इट्स मोर ऑफ अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्लिनिकल डायग्नोसिस का मतलब है हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, तो यू कैन नॉट मिस एनीथिंग इन हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन इन अ पेशेंट विद अ पीसीओ, क्योंकि इसके अंदर शायद हार्मोन लेवल्स और शायद इन्वेस्टिगेशंस इतनी इंपॉर्टेंट या इतनी सेंसिटिव नहीं है जितना हिस्ट्री और एग्जामिनेशन सेंसिटिव है फॉर मैनेजमेंट एज वेल एज फॉर द डायग्नोसिस, ठीक है।
सो इस तरीके से। और किसी ने कुछ ऐड करना है? ओके चलो, इन्वेस्टिगेशन। अब सिंपल आप बताओ इन्वेस्टिगेशंस क्या होंगे। तो मैम एक मिनट, सॉरी, मैं इन्वेस्टिगेशन एक बात और बताऊं तो अभी तक आई थिंक अगर 4 मिनट्स में आप हिस्ट्री और एग्जामिनेशन, क्योंकि जब तक आपका हिस्ट्री का ये पूरा एक जिसे कहते हैं ना माइंड मैप बना हुआ है और आपने क्विकली इसी तरह बोल दिया, यू विल नॉट मिस एनीथिंग, आई डोंट थिंक। देखो मैंने बहुत छोटी सी बातें बोली। आई थिंक अगर आप इसको बहुत स्पीड में भी नहीं बोलना कि अगले को समझ ही ना आए, लेकिन 1.5 2 मिनट में आराम से हिस्ट्री बोल सकते हो। एग्जामिनेशन में मे बी आप पूरा का पूरा ना भी बोलो, मे बी चलो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में नॉट बी दैट इंपॉर्टेंट दिस पेशेंट, वजाइनल एग्जामिनेशन में नॉट बी दैट इंपॉर्टेंट दिस पेशेंट, लेट बाद में आप बोल सकते हो। लेकिन आप इसके जो फोकस्ड बातें भी अगर बोल दोगे, अगर नहीं बोलोगे तो फिर तो बिल्कुल ही बात नहीं बनती ना। तो इसको बोलने में आपको टोटल अगर आपका हिस्ट्री एग्जामिनेशन में 3.5 से 4 मिनट लग जाएंगे तो आई थिंक ये, और फैसला उन्हीं 3.5 4 मिनट में हो जाएगा। एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि इसके क्लिनिक पे या इसके ओपीडी में अगर पीसीओ का पेशेंट आया है तो ये उससे उसके एग्जामिनेशन में क्या क्या चीजें, हम तो देखते ही पेशेंट को बता सकते हैं कि पीसीओ है कि नहीं, वेस्ट रेशियो से ही पता चल जाता है। उसकी जो ओबेसिटी होती है वो एक नॉर्मल ओबेसिटी नहीं होती पेशेंट की, उसका वेस्ट रेशियो ही डिफरेंट होता है उसका। एंड देन व्हेन वी एग्जामिन हर इन डिटेल तो यस एकिन्थोसिस आपको मिलता है। और जब और ज्यादा इंक्वायर करो, आप हर पीसीओ में एक स्टडी करके देख लो, आप थायराइड का टेस्ट कराओ। पेशेंट्स को नॉर्मली नहीं पता होता कि उन्हें थायराइड का मसला है नहीं, जस्ट गेट द थायराइड फंक्शन टेस्ट डन इन अ पेशेंट इन विच, जिसके अंदर यू आर एक्सपेक्टिंग दैट शी मे बी हैविंग पीसीओ। तो उसके अंदर जस्ट गेट द थायराइड फंक्शन टेस्ट डन एंड यू विल फाइंड आउट दैट दे रियली हैव हाइपोथायराइड एज वेल, राइट। तो आप ये इसको साथ में आप करके यू कैन डू स्टडी ऑन दिस एज वेल। तो आप ये चीजें नहीं मिस कर सकते उसके अंदर, ठीक है, एग्जामिनेशन में खास तौर पे। चलो अब मुझे जल्दी से इन्वेस्टिगेशन सुन। Ma'am, investigations for her basic health status, including her complete blood picture, including her for hemoglobin, for total leukocyte count and platelets, her blood grouping, and her hepatitis screening, and her fasting blood sugar or HbA1c or OGTT done, any or her lipid profile and her thyroid function test and her husband semen analysis, and then transvaginal ultrasound, which is already done. अच्छा, Uh, किसी और ने ऐड करनी है कोई इन्वेस्टिगेशंस? Ma'am, serum testosterone can also be helpful if the patient is having hyperandrogenism, not for अच्छा। subfertility. मैम इसमें और मैम बेसिक ट्यूब पेटेंसी के लिए हम जो है वो करेंगे मैम, पेटेंसी अच्छा चलो भी करेंगे। और फॉलिकुलर मैम थेरेपी के लिए मैम इन अल्ट्रासाउंड। द लॉन्ग रन इफ आई एम गोइंग टू गिव हर दिस क्लोमिफेन सिट्रेट, तो उसके लिए रूबेला की स्क्रीनिंग भी करेंगे। और मैम विल चेक फॉर ट्यूबल पेटेंसी फर्स्ट हम्म। एंड अच्छा, इस तरह नहीं, एनालिसिस। देखो इन्वेस्टिगेशंस ब्लड आपको ट्रैकिंग एक सीरीज में बोलनी है। आपको इन्वेस्टिगेशंस इस तरह आगे पीछे नहीं आप करके बोल सकते हो। वही बात है, इस तरह आगे पीछे करके बोलोगे तो आपके मार्क्स जो है ना 58 आ जाएंगे, मतलब पासिंग नहीं होंगे। फिर यही बात होती है कि 58 59 वाला कैंडिडेट सोचता है कि मैं तो एक नंबर से फेल हूँ, पता नहीं शायद मैं पास ही हो जाती। लेकिन एक मैं बात बताऊं, 59 और 60 वाले में जमीन और आसमान का फर्क होता है कैंडिडेट में। सो किसी के अगर 60 से कम आए, वो पास के उस साइड पे खड़ा है, वो पास के उस साइड पे खड़ा है, सो और उसके अब देखो, आई मे बी यू हैव कवर्ड मोर देन 90% ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, बट सुनने में आई डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। रविंदा, मैं आपकी बात सुनती हूँ, एक मिनट। इसकी अगर आप एक कंटिन्यूटी में बोलो, देखो शी इज अ केस ऑफ सफर्टिलिटी, चलो आपने बेसलाइन बोल दिया, आप अगर बहुत ज्यादा टाइम लगाया आपने बेसलाइन बोलने में, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन ऑन द बेसलाइन, बिकॉज अब ये वो वाला स्टेशन नहीं है कि घंटे का वाइवा हो रहा है, ये है आपका 10 मिनट्स का खाली। सो इफ यू हैव टाइम इवन देन, फिर भी आपके हाथ फिंगर टिप्स पे होना चाहिए ना कि आप फटाफट बोलो कि ब्लड ग्रुप, सीबीसी, वायरल मार्कर्स, ब्लड शुगर, ब्लड इस पेशेंट के अंदर कौन सी, अब आप सारे शुगर के टेस्ट उसमें कराओगे क्या? क्या आप पेशेंट को चॉइस दे रहे हो कि जाके आप या तो फास्टिंग करा लें या HbA1c करा लें या जीटीटी करा लें? मतलब हमें मुझे तो सुनने में यही लगा कि आपने तो पेशेंट आपने कहा आइदर ब्लड शुगर फास्टिंग, आइदर जीटीटी और HbA1c।
मतलब ये तो अजीब सी बात है। मैं पेशेंट को क्या पता, उसने तो जिंदगी में कभी नाम नहीं सुना इन टेस्टों का। वो क्या कराए जाके, आप एक टेस्ट बोलोगे जो आपने उस पेशेंट को लिख के देना है। आप ओपीडी में बैठ के आइदर आइदर की बात नहीं कर रहे होते, यू जस्ट राइट डाउन द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो जब आपने बेसलाइन भी बोली, क्विकली ब्लड ग्रुप, सीबीसी, वायरल मार्कर, शुगर का जो टेस्ट आपने कराना है वो वाला, यूरिन कंप्लीट, दैट इज इट। इसको बोलने में अगर आप 1 मिनट लगा लोगे, मैंने आपको कहा कि 3.5 से 4 मिनट में आपने हिस्ट्री एग्जामिनेशन की बात की है, तो उसके बाद सिर्फ बेसलाइन बोलने में ही अगर आप 1 मिनट लगा दोगे तो क्या फायदा, तो फिर तो गलत बात होगी ना। तो इस वजह से आपने क्विकली बेसलाइन। अच्छा, इस पेशेंट के अंदर यस, शी कैन बी ए कैंडिडेट फॉर डायबिटीज एज वेल। देखो दो चीजें हैं, शी इज 28। 30 के बाद कहते हैं जीटीटी हर पीसीओ में ईयरली करा लेना चाहिए, राइट। आई थिंक 28 ईयर्स में मैं तो HbA1c कराऊंगी, बट अगर कोई जीटीटी कराना चाहता है तो वो भी ठीक है। फास्टिंग में शायद ना कराऊं, बिकॉज आई वांट मोर डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर इट। सो अगर आप डायरेक्ट जीटीटी भी कराना चाहते हो वो गलत नहीं होगा। बट एज शी इज 28, मे बी आई डोंट रियली एक्सपेक्ट कि उसको पीसीओ की वजह से इस वक्त डायबिटीज हो गई होगी। 30 के बाद यदि जीटीटी भी हो जाए तो वो ठीक है, लेकिन एट द एज ऑफ 28 मैं तो HbA1c से ही काम चला लूंगी। सो इवन अगर आप सिर्फ फास्टिंग भी बोलो तो ये भी आप जस्टिफाई कर सकते हो। बट एक चीज बोलो। अच्छा, उसके बाद जब आपने ये आपने बेसलाइन बोल दी, बेसलाइन के बाद आपने जो है, अब देखो शी इज अ केस ऑफ सबफर्टिलिटी विद पीसीओ। सबसे आसान इन्वेस्टिगेशन, लेस इंटरवेंशन वाली इन अ पेशेंट ऑफ सबफर्टिलिटी, सेमेन एनालिसिस, ठीक है, हस्बैंड सेमेन एनालिसिस। बेशक आप सबसे पहले वो बोल दो। उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर आपने हार्मोनल, देखो शी इज अ केस ऑफ पीसीओ, आपने इसके अंदर हार्मोनल प्रोफाइल तो कराओ, सेकंड डे का एफएसएच, एलएच और प्रोलैक्टिन तो कराओ, आपने नहीं कराया। उसके बाद आप, आजकल एवरीवन इज सेइंग कि एएमएच भी बंदा साथ कराए, बिकॉज यू नो एएमएच कंटिन्यूअसली डाउन उसमें। सो इफ यू फील लाइक तो आप एक एएमएच का भी देख सकते हो, उसके अंदर ना भी कराओ तो इट्स ओके, शी इज ओनली 28, सो वो नहीं है। सो हार्मोनल प्रोफाइल के बाद आपने साथ ही थायराइड फंक्शन टेस्ट, अगर आप इसमें पूरा बोल दो कि T3 T4 कौन सा वाला और TSH, तो वो और भी बेहतर हो जाएगा। उसके बाद आपने लिपिड प्रोफाइल कराया, ओके फाइन, ठीक है। लिपिड प्रोफाइल का हम देख सकते हैं, बट आई डोंट नो, ठीक है, बिकॉज ये इसके साथ एसोसिएटेड हो सकता है। और आपने कौन सा टेस्ट कराया था? मैम फिर रूबेला स्क्रीनिंग कराई थी और ये क्यों? मैम रुबेला एंटीनेटल। स्क्रीनिंग का इसमें कोई काम नहीं है। आपने अच्छा, और एंड पे आके हम टीवीएस। तो अब इसके अंदर देखो एक सीरीज आपने रखनी है, और HSG, वो यस मैम, हिस्टेरोसेल्पिंगोग्राम एट या द फिर एंड। ट्यूबल पेटेंसी का कोई टेस्ट। अब इस सारे के अंदर आपने पहले बेसलाइन मांगनी है, फिर सब फर्टिलिटी से रिलेटेड हस्बैंड की रिपोर्ट, सेकंड नंबर पे आसान टेस्ट ब्लड टेस्ट आते हैं, उसमें हार्मोनल प्रोफाइल, थायराइड का टेस्ट, और उसके बाद आपने ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट और अल्ट्रासाउंड, ठीक है ना। तो ये अगर आप इस सीक्वेंस में ही रखो तो फिर यू विल नॉट मिस एनीथिंग, और सुनने वाले को भी पता चलेगा कि आप जो हो वो ठीक मतलब आप मिस नहीं कर रहे हो कोई चीज। अगर इसमें किसी ने कुछ ऐड करना तो कर दे। जी डॉक्टर अरूबा, ये आजकल बहुत सारे लोग ये रुबेला का जरूर टेस्ट ऐड करा रहे हैं सब फर्टिलिटी वर्कअप में, तो आप इसके क्यों? बारे में क्या, कि ताकि अगर वो नहीं है वैक्सीनेटेड करा के फिर उसको जो है आगे ले जाए। चलो मैम करा लो, इसमें ऑलरेडी वो भी नहीं है, ठीक है, इसी करा वजह लें। से। मैम मैडम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में जो है सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन और सीरम टेस्टोस्टेरोन, इसका कोई रोल है? इसका रोल तब है कि अगर क्लिनिकली वो वाकई हर्सिटिज्म के क्राइटेरिया में आती है। अगर वो वाकई इसके क्राइटेरिया में आती है तो फिर आपने फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल फाइंड आउट करना होता है, टू डायग्नोज दैट वेदर शी इज रियली हैविंग हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल। और फिर तो वो पीसीओ का केस नहीं बनेगा ना। पीसीओ के अंदर हाइपर, ये जो टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होता है, वो पीसीओ में जो हर्सिटिज्म है, इट्स नॉट एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ द वेरी हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। अगर आपका वाकई हर्सिटिज्म की तरफ जा रहा है तो फिर तो आपको हर्सिटिज्म के बाकी भी सारे टेस्ट, फिर तो वही डीडी बन जाएगा। और उसके बाद आप, बिकॉज इस सिनेरियो के अंदर तो उन्होंने दे दिया कि शी इज हैविंग पीसीओ, इस वजह से आप बहुत ज्यादा हम उस तरफ गए नहीं। लेकिन अगर एक हैपेजाइट सी कंप्लेन होगी, जैसे मे बी शी इज देयर विद इन फ्रीक्वेंट साइकिल्स एंड एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द बॉडी, तो उसके अंदर फिर हर्सिटिज्म का भी पूरा डीडी बनेगा और उसके सारे टेस्ट भी होंगे। इसके अंदर पीसीओ दे दिया गया,
फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल तब आपने पता करना है, यानी DHEA और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कराने हैं जब आपका क्लिनिकल क्राइटेरिया फॉर हर्सिटिज्म होगा, यानी कि वाकई में एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होगी। जी जी खान साहब, मैम फॉलिकुलर ट्रैकिंग स्कैन कराएंगे बिफोर HSG? ये बड़ा अच्छा सवाल है, इस पे मैं आगे जाने लगी थी। दो ऑप्शन है, देखो, एक तो डायरेक्ट आप अल्ट्रासाउंड करा रहे हो जिसके अंदर आपने ओवरीज का देखना है और वो सारा, लेकिन एक ये भी आप कह सकते हो कि डे 12 का अल्ट्रासाउंड, राइट, तो उसके अंदर हम साइज ऑफ फॉलिकल और वो सारा भी देख सकते हैं। लेकिन अगर खाली अल्ट्रासाउंड फिलहाल कह दें, क्योंकि आगे जब आपने उसको लेटर ऑन ओव्यूलेशन इंडक्शन देनी है उसमें भी आपने अल्ट्रासाउंड कराना है, तो वो सारा आप देख सकते हो। एंड मैम मिड ल्यूटल प्रोजेस्टेरॉन, मिड ल्यूटल प्रोजेस्टेरॉन Yes, लेवल। day 21, not mid-luteal. Better say day 21 progesterone in a 20-day cycle. Yes, ये कहा जाता है कि ये करा लें। Secondly, she is a case of infrequent cycles. Infrequent cycles के अंदर आप day 21 in a 28-day cycle कहोगे, but as she's having infrequent cycles, तो फिर आप day 21 के बाद alternate day पे कराओगे till she gets periods, और फिर उसके हिसाब से आप उसका 7 day पहले वाला चेक कर लोगे प्रोजेस्टेरॉन लेवल। तो दिस इज अ गुड आइडिया, बिल्कुल ओव्यूलेशन देखने के लिए। जी सनम। थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम वेलकम मैम। जी सनम। जी जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैडम, सलाम। ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे कि ये नोन केस आप PCO है, तो क्या अभी हाँ, इस कंडीशन में हमने पेशेंट्स के TVS करना है इस क्यों नहीं सिनेरियो में अभी? करें? आपने एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेनी है अच्छी। अगर TVS भी आपने कहा है तो वो भी ठीक है। अगर एब्डोमिनल पेल्विक अल्ट्रासाउंड, मतलब नॉट एब्डोमिनल पेल्विक अल्ट्रासाउंड है तो वो भी ठीक है। ओके मैडम, ओके। TVS उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि ऑब्वियसली फॉर ओवरीज इट इज बेटर टू डू द TVS कब किया जाता है, पेल्विक अल्ट्रासाउंड कब किया जाता है, ये भी एक बड़ा वो है कि जी किस वक्त क्या बोलना है। अगर तो आपको कोई मैस एब्डोमेन से फील हो रहा है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में अगर आपको कोई मैस फील हो गया, जैसे कि शी इज हैविंग वेरियन सिस्ट जो कि एब्डोमिनली फील होगी है, फिर तो पेल्विक अल्ट्रासाउंड से भी वो नजर आ जाएगी। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में और सिर्फ पेल्विक एग्जामिनेशन में ही आपको यूट्रस और एडिनेक्सा का पता लग रहा है, तो फिर TBS इज बेटर। ठीक है इन मैडम। अदर वर्ड्स 12 वीक साइज से बड़ा साइज का कुछ भी होगा तो जाहिर है तभी एब्डोमिनल पे फील होता है ना, तो फिर आप एब्डोमिनल स्कैन से पेल्विक स्कैन से देख लेते हो, लेकिन अदरवाइज TBS से पता चलेगा। थैंक यू मैडम। जी ये बात बताइए जी यास्मीन। मैम इसमें लिपिड प्रोफाइल का ये था कि अगर ना फैमिली हिस्ट्री है उसमें रिस्क फैक्टर है ना तो फिर करवाएंगे, फिर कराओगे, मतलब लेकिन ये भी मैम लॉन्ग जस्टिफाइबल रन है में मैम, क्योंकि हाइपरलिपिडीमिया इस, जैसे हम डायबिटीज कहते हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हाइपरलिपिडीमिया, ये सारी चीजें एसोसिएटेड है विद PCO। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, यास्मीन ने ठीक कहा, क्योंकि ये सारी इन्वेस्टिगेशंस रिकमेंडेड है आफ्टर 30 years, के 30 year एंड अबव में आप ईयरली उसका फिर कराते हो GTT भी, और लिपिड प्रोफाइल भी आप चलो से एडवाइस करते हो, यू टेल द पेशेंट टू कीप अ चेक ऑन द ब्लड प्रेशर, बिकॉज अगर ये चीजें 40 के बाद होनी है तो PCO वाले में शायद 30 के बाद हो जाएंगी। So after the age of 30, patient is advised to get all these things done yearly, once a year at least. She is 28, तो अगर आप lipid profile ना भी कराओ, but again it's justifiable. She is a case of PCO. What if she doesn't come back again? It's better कि आप उसका baseline करा लो, तो वो है। किसी ने दुआ ने क्वेश्चन के इरेगुलर साइकिल में प्रोजेस्टेरोन लेवल, उसका जवाब मैं दे चुकी हूँ। डे 21 से ऑल्टरनेट डे पे आप सीरियल प्रोजेस्टेरोन लेवल्स कराते हो टिल शी गेट्स पीरियड्स, एंड देन उस हिसाब से उस पीरियड्स की डेट से फिर आप हिसाब कर लेते हो डे 21 पे उसके क्या था स्टेटस। जी मैम इसमें हम फर्टिलिटी के दूसरे रीजंस को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे जब PCO में पता है तो? इसे दे दिया उन्होंने, मैंने टच किया है, देखो हिस्ट्री में हमने टच किया, हमने सारा कुछ। सॉरी मैं जरा म्यूट कर रही हूँ, आपको जिस टाइम म्यूट करना होगा वो फिर अनम्यूट कर ले। सो इसके अंदर हमने टच किया था सारे रीजंस को हिस्ट्री में। हमने ट्यूबल पेटेंसी को भी देखा, इवन वी स्टार्टेड विद द फर्स्ट मैरिज एंड लिविंग टुगेदर और नॉट, इंटरकोर्स एंड ऑल। उसके बाद हमने जो है बाकी सर्जरी, ट्यूबल स्टेटस, हस्बैंड, सारी चीजें हमने हिस्ट्री में टच की, बट एज अ डायग्नोसिस गिवन तो इट्स बेटर कि डिस्कशन उसी पे चली जाए। जी मैडम। ठीक है।
गुड। फैमिली हिस्ट्री सो ऑफ सुंबल ध्यान दे। पीसीओ भी इम्पोर्टेंट। जी यास्मीन। मैम फैमिली हिस्ट्री ऑफ पीसीओ भी इम्पोर्टेंट हो जाएगी जब हम ये तो फैमिली मैंने हिस्ट्री की बात। पूछा था, Yes, फैमिली हिस्ट्री ऑफ family history of डायबिटीज और PCO is पीसीओएस also दोनों मैंने important, पूछा था। but at times, ये पूछना, बिकॉज अगेन मैंने आपको ये कहा कि पीसीओ का जो डायग्नोसिस है इतना आम और इतना आसान नहीं। Every girl cannot have PCO. Every girl who is having infrequent cycle is not having PCO. Every girl who's got weight gain is not PCO. PCO का एक particular criteria है. That girl has to come in. Every girl who gets an ultrasound with a report of PCO is not actually PCO. We know that. Unfortunately, हमारे कंट्री में हर अल्ट्रासाउंड के नीचे अगर PCO लिखा होता है और उस फैमिली में ये बता दिया जाता है कि दिस गर्ल इज हैविंग PCO। अल्लाह ना करे इसका इतना इतना गलत इम्पैक्ट भी आता है कि मैं आपको बता रही हूँ, मैंने तो पेशेंट के अंदर जस्ट बिकॉज शी वाज कैरिंग अ रिपोर्ट विद पीसीओ, उसके इतने बुरे सोशल इम्पैक्ट एंड लेटर ऑन शी एंडेड अप इन डिवोर्स, सिर्फ इसलिए, हालांकि इसका एक पूरा क्लिनिकल क्राइटेरिया है जिसके बाद पीसीओ डायग्नोस होता है। अगर हम किसी से फैमिली हिस्ट्री ऑफ पीसीओ पूछ लेंगे तो शायद वो तो ये कहेगी कि मेरी तो फैमिली में हर औरत को पीसीओ है, मतलब हालांकि ऐसा होगा नहीं। सो पीसीओ का क्लिनिकल diagnosis is very very important. It's not even made on the hormonal test or on list of, अच्छा पेशेंट से इतनी मोटी मोटी फाइलें भी पकड़ी होती हैं with a lot of hormonal tests that are done which are very very expensive। ये सरकारी अस्पतालों में होते नहीं है टेस्ट, और हरेका एफएसएच एलएच बार बार। हालांकि हम ये देखें तो रोटरडम क्राइटेरिया में इवन जो आई एम श्योर यास्मीन है, अगर नई वाली गाइडलाइन हम शेयर भी कर लेंगे, कहीं हार्मोनल टेस्ट के ऊपर डायग्नोसिस नहीं बन रहा पीसीओ का। ऑल्दो एफएसएच एलएच रेशियो का जो फर्क आता है वो उस चीज को रीइंफोर्स करता है डायग्नोसिस को, लेकिन जो डेफिनेशन और जो डायग्नोसिस बनाने वाली चीज है वो भी टेस्टों पे डिपेंड नहीं करता। तो डोंट डिपेंड ऑन द ब्लड टेस्ट ऑफ दीज पेशेंट्स ओनली। इसका ये मतलब नहीं होता कि हर विजिट पे उनको ये टेस्ट लिख के दे दिया जाए, या आपको एक क्लिनिकल क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और देन और ब्रेकिंग अप दिस आइडिया और दिस न्यूज दैट शी इज हैविंग पीसीओ, अगर किसी को एक्चुअली पीसीओ है, जैसे कि हमें सिनेरियो में उन्होंने दिया हुआ है कि पीसीओ है अकॉर्डिंग टू रोटरडम क्राइटेरिया, तो वो भी आप उसको इस तरीके से मतलब इवन टेलिंग द पेशेंट कि आपको ये है, यू हैव टू टेल दैट दिस इज नॉट एक्चुअली अ डिजीज सॉर्ट ऑफ अ थिंग, रादर वी कैन से इट्स जस्ट अ कंडीशन। मैं तो इसको यही कहूंगी बिकॉज पीसीओ इज समथिंग विच इज 100% रिवर्सिबल। वी ऑल नो दैट, हम सबको पता है, हम सब पेशेंट से डील करते हैं। वी ऑल नो कि पीसीओ इज 100% रिवर्सिबल, इट हैज गॉट 100% फर्टिलिटी। इसमें 100% वेट रिडक्ट, इसमें कोई ऐसी चीज, मे बी थायराइड में वेट रिड्यूस करना मुश्किल होगा, बट पीसीओ ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें बिल्कुल इम्पॉसिबल हो वेट रिडक्शन। और इट्स डिपेंडिंग मोर ऑन द लाइफस्टाइल देन ऑन द मेडिसिन, इट्स डिपेंडिंग मोर ऑन द क्लिनिकल कंडीशन देन ऑन द लेबोरेटरी टेस्ट। सो ये चीज बिफोर इवन टेलिंग द डायग्नोसिस, अगर इस चीज को पहले बताया जाए कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप इसको डिजीज का नाम दे दें या आप इसको कोई पैथोलॉजी के, ठीक है इट इज पैथोलॉजिकल बट इट्स 100 एज इट्स 100% एंड वी नो कि शायद एक महीने में होगी। if she reduces her weight, the periods get normal, very next month or maybe उस अगले महीने she will not be having this problem at all। तो इसको इस तरीके से ही बताना, क्लिनिक पे बैठ के ओपीडी में बैठ के breaking up the news that a girl is having PCO is a very important thing कि आप किस तरीके से वो न्यूज ब्रेक कर रहे हो। वरना ये तो अजीब सी चीज समझी जाती है कि पता नहीं ये है तो इसका मतलब है, मदर्स कम क्राइंग कि मेरी बेटी के अल्ट्रासाउंड पे ये लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि मे बी शी को पता नहीं कितना बड़ी बीमारी लग गई एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसको जो है अगर हम लाइट तरीके से, और फिर पेशेंट इसमें ज्यादा रिसेप्टिव भी होते हैं, बिकॉज इसमें पेशेंट का रिसेप्टिव होना भी जरूरी है। दैट द लाइफस्टाइल, व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय द लाइफस्टाइल, ये सारा अब हम अभी डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट में। ठीक है, चलो हाँ जी जी सुंबल, अब आप मैनेजमेंट स्टार्ट करो। I will consult a patient regarding the diagnosis of having polycystic ovarian syndrome, and will tell her about that it is one of the commonest conditions, and but with a healthy lifestyle, many of its symptoms can be easily reversed, like
she should eat a healthy, balanced diet that should include fruits and vegetables and whole foods, and she should avoid pastry item, bakery items, and should eat meals regularly. Especially should take breakfast on time, regular exercise, brisk walk or exercise of 30 minutes at least 3 times a week, and as she had a BMI of 36, so she should aim to lose her weight, and that would have a positive effect on her condition as well. And just by reducing her weight of just 5 to 10% will improve her symptoms to a tremendous level. Like her acne and hirsutism can be reduced up to 55%. Reduction in hirsutism can occur. Her periods will become much regular, and even the long-term risk of diabetes mellitus or heart problem or see endometrium, like these can be avoided, and this will have an positive effect on her mood and self-esteem, and there is also increased chance of conception as well. And if she wants to conceive, then her ideal BMI is less than 30 gram per meter square. So I will counsel her regarding multidisciplinary team, and will refer her to dietitian for a diet counseling. And if she's stressed or depressed because of this, then I can arrange a meeting with psychologist as well. And for screening of long-term complications of PCO, I will refer her to medical specialist, and I will advise her folic acid 5 milligram to be taken, and if she doesn't improve with these lifestyle and other things, then we can switch on to medications in which include clomiphene citrate and metformin. Ma'am, and I will tell her about the clomiphene. With clomiphene are the tablets which will cause her follicle size to increase, and she should take about 6 cycles of clomiphene citrate. And it has the evidence has shown that almost 60 to 70% of the patient have conceived after 6 cycles of taking clomiphene citrate. But at the same time, I will tell her about the risk associated with clomiphene citrate of multiple pregnancies. And once this medicine is taken, then she need to follow up for follicular tracking as well. And we can give her metformin as well, which is a glucose lowering drug, and there is no risk of multiple pregnancy with that, but it is associated with nausea and vomiting, some side effects like that. And मैम फिर वो तो आगे चल के if she has got this ovulation doesn't occur, then it would be clomiphene resistant case. But if with clomiphene citrate the ovulation does occur, then and still she doesn't conceive, then it would become a clomiphene citrate failure case, in that we can counsel her regarding for IVF. And ma'am, in other ठीक है, so good. the अच्छा, laparoscopic ovarian आपका regarding मैनेजमेंट अच्छी है. हिस्ट्री एग्जामिनेशन में आपने बड़ा शॉर्ट शायद रखे, बट मैनेजमेंट वाज गुड. इसको थोड़ा और ज्यादा अच्छे तरीके से बोलने की जरूरत है. और देखो, वही चीज है कि अब आपके पास शायद टोटल 4 मिनट रह गए मैनेजमेंट के, राइट? लेकिन इस 4 मिनट में आपने काफी कुछ कवर करना है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से कवर हो सकता है, और भी ज्यादा, ताकि आपका कुछ भी ना मिस हो इसके अंदर. एक चीज तो ये, whenever you start the management, you have to complete your investigation. So quickly you will say that as a scenario is given, and she's a case of polycystic ovaries. And considering that her husband's semen analysis is normal and her tubal patency is fine, उससे आगे हम बात शुरू करेंगे. So she is 28 and her BMI is 36. I have adequate time considering her ovarian reserve. So I will counsel her, or I would like to discuss with her options. Number one is that
फर्स्ट 3 मंथ्स में आपने एक उसे पूरा प्लान बना के देना ना, कि पहले 3 महीने वेट रिडक्शन होगी, उससे अगले 3 या 6 महीने में ओवुलेशन रिडक्शन होगी, उसके बाद क्या क्या होगा। इन सारी चीजों में यू विल, आपका स्टार्ट बहुत अच्छा था, यू स्टार्टेड विद लाइफस्टाइल चेंजेस एंड ऑल, उसको थोड़ा और इलेबोरेट करो। आप उसे यूं बताओगे कि लाइफस्टाइल चेंजेस के अंदर क्या क्या चीजें मैटर कर रही हैं। वेट रिडक्शन क्या है, उसको टारगेट बताओ ना, कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में इफ शी रिड्यूसेस मोर देन 10% ऑफ हर वेट, दैट विल कॉज, स्टडीज है, एविडेंस बेस्ड बात है कि मोर देन 90% ऑफ पेशेंट्स कंसीव आफ्टर रिड्यूसिंग 10% ऑफ देयर वेट इन 3 मंथ्स. So she can conceive naturally even. So weight reduction is that important. वेट रिडक्शन में दो तीन क्या क्या चीजें आएंगी, वो आपने बड़ा अच्छा, अपने न्यूट्रिशनिस्ट को भी अपने उसमें टीम में डाला, अपने साइकोलॉजिस्ट को भी डाला, एंड देन यू आपने मेडिकल स्पेशलिस्ट को भी किया, सो विच इज वेरी गुड. और इसके अंदर लेकिन जो खुद क्या, ठीक है आप तो वो भी डाइट का बताने का स्टाइल भी ठीक था, बट आप उसको कैलोरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्विकली कह दो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट रेशो विद एग्रेसिव एक्सरसाइज 1 आवर की, जब तक वो एग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं ऐड करेगी, सो वो भी उसमें. एंड देन द स्लीप साइकिल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर फर्टिलिटी, स्पेशली फॉर पीसीओ पेशेंट्स एज वेल. तो स्लीप साइकिल इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि वी नो कि कई हॉर्मोन्स इन द फर्टिलिटी साइकिल एज वेल, देयर इज अ हार्मोन जो अर्ली मॉर्निंग एसीटीएच रिलीज होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो अगर एक स्लीप साइकिल, एक लड़की कहती है कि मेरा तो काम ही ऐसा, मे बी शी, हर जॉब इज लाइक के वो कोई भी ऑनलाइन उसने काम करना है, जो कि नाइट में वो जाग रही है और दिन में वो सो रही है, तो इवन दिस टाइप ऑफ स्लीप पैटर्न अफेक्ट्स फर्टिलिटी एज वेल. सो सो उसकी स्लीप साइकिल भी बहुत मैटर कर रही होती है साथ में. तो ये आपने लाइफस्टाइल के अंदर डाइट, एक्सरसाइज, उसका पूरा ओवरऑल लाइफस्टाइल, स्लीप, वो सारा आपने मेंशन करना है. देन यू विल से आफ्टर दिस, उसके बाद आपने उसको प्लान पूरा देना है. फर्स्ट 3 मंथ्स वेट रिडक्शन विद मेटफॉर्मिन, राइट ओनली. उसमें क्या एम्फेसाइज करना है, क्योंकि शी हैज टू रिड्यूस वेट. ऐसा ना हो कि 3 महीने बाद वो आया और मोर लेस 1-2 kg बस कम करके आई है. सो शी हैज टू रिड्यूस 10% ऑफ हर बॉडी वेट इन 3 मंथ्स टाइम. और उसके अंदर इफ शी डज दैट, तो देर आर मोर देन 90% चांसेस दैट शी कैन कंसीव ऑल्सो. सो ये, तो फिर तो मसला ही हल हो गया. So first 3 months में, if she doesn't conceive in the first 3 months, then as she has reduced weight, I will give her ovulation induction. Ovulation induction with maybe Clomid, right? Clomiphene citrate आप कह दो, बट उसमें भी आप क्विकली बोलो. आप वो भी ठीक कह रहे थे, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बोल रहे थे, उसमें फंस सकते हो. लेकिन वो भी आपका स्टाइल भी बिल्कुल ठीक है. वो ये नहीं कि अब आप उसको अगर नहीं चेंज करना चाहते तो आप उस तरह भी कर सकते हो, बट मैं आपको ये वाला तरीका भी बताती हूँ. So you will give her ovulation induction and you will see response of the medicine in terms of ovulation as well as pregnancy. If pregnancy occurs, बात तो वही खत्म. If ovulation occurs, I will continue the same medicine for the next 3 months at least, right? If ovulation doesn't occur with the same medicine, then either I increase the dose or I change the medicine, right? इंक्रीज डोज करके भी अगर ओवुलेशन नहीं हुई, तो ऑब्वियसली फिर हम वो एरोमेटेज इनहिबिटर्स की तरफ चले जाएंगे. सो आई विल अदरवाइज चेंज द डोज. और उसमें अगर आप बहुत अच्छा बता रहे हो, यू नो यू आर कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग, तो इट्स बेटर कि आप अपने पेशेंट को उधर ही कंसीव भी करा दो, यू नो. और फिर इवन प्रेगनेंसी में भी बड़ा कुछ है पीसीओ के, तो आप उसको कर सकते हो. अगर नहीं तो यस, फिर आपको एग्जामिनर खुद ही लेके जाएगा आईयूआई पे, डायरेक्ट आईवीएफ पे, या जो भी. बट इट्स बेटर इफ शी कंसीव्स. तो उसके बाद तो इवन प्रेगनेंसी में भी तो कितना कुछ है पीसीओ के. आफ्टर कंसेप्शन पीसीओ में आपके डायबिटीज हो जाता है, हाइपरटेंशन, और ऐसे पेशेंट्स में ऑब्वियसली वेट गेन, और इफ शी इज हैविंग थायराइड आल्सो, वो सारा कुछ लेके चलना होता है, अर्ली जीटीटी कराना होता है. सो ये उसके अंदर फिर आपका प्रेगनेंसी का अपना और सारी चीजें हो जाती हैं. तो अगर आप मैनेजमेंट इस तरीके से बोलो, तो आई थिंक यू विल कवर ईच एंड एवरीथिंग, और इसमें बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, किसी ने कुछ ऐड करना है तो बताएं. मैम इसके साथ फिर हम ये लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग और वो सारी चीजें तो इसको बाद में ऑप्शन देंगे. लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता. यू डोंट नीड टू डू इट. आपने ये नहीं करनी, ये एक अच्छी चीज नहीं है. किस गाइडलाइन में कहाँ लिखा है? अगर कहीं लिखा है तो बहुत एंड पे जाके शायद एक लाइन लिखी हो कि बहुत ही जो रेजिस्टेंट पेशेंट्स होते हैं, वो बहुत शायद रेयर होते होंगे. आपने कितनों में किया, आपने ड्यूरिंग ट्रेनिंग, वी डील विद, आई थिंक हमारे तो मुल्क में इतने पीसीओज हैं जो कि जेन्युइन पीसीओ हैं. तो उसमें आपने किस, कहाँ सुना है, कहाँ देखा है कि कोई आपको ओवेरियन ड्रिलिंग एडवाइस कर रहा हो?
कोई नहीं नहीं सर, नहीं करता, बिकॉज बताते। होती नहीं है। आपने एग्जाम में भी नहीं बोलना। ये और आपको मैम वेरिएंट गुड रिजर्व कम प्रिकॉशन का कोई करेगा, रोल है? डैमेज कॉज करेगा, डिजीज कॉज करेगा, ट्यूबे ब्लॉक करेगा, एंड पे फायदा भी ज्यादा नहीं होगा। ये बहुत रेजिस्टेंट वाले पेशेंट्स होते हैं जो कि बहुत रेयर होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपने, जी खान साहब ने कोई क्वेश्चन करना। Ma'am, before going to the fertility treatment, we have to regulate her cycle because patient is coming with the irregular menstrual cycle. यस, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। सो शुरू में आपने डिस्कस किया, मैंने इसीलिए कहा कि यू विल डिस्कस विद द पेशेंट उसकी प्रायोरिटीज क्या है। उसकी प्रायोरिटी है रेगुलराइज द साइकिल और कंसीव करना। अगर रेगुलराइज साइकिल है तो हाँ, वो उसमें भी वेट रिडक्शन ही सबसे पहले आएगा। अगर कंसीव करने का है तो कितना हरी है। देखो, देर आर मेनी थिंग्स। समटाइम्स इफ हस्बैंड इज गोइंग अब्रॉड नेक्स्ट 6 months और सो, वी हैव वेरी लेस टाइम, राइट। फिर आप उसको कहते हो कि मैं पहले 3 महीने अगर वेट रिडक्शन लगाया तो मेरे पास बड़ा कम रह जाएगा, टाइम रह जाएगा ओव्यूलेशन रिडक्शन का। सिमिलरली कोई कुछ में फैमिली का इतना प्रेशर होता है कि वो पेशेंट्स कहती है कि नहीं, हमने तो फौरन ही करना है, और तो भी हम उसे काउंसिल करते हैं कि अगर पहले 3 महीने में वेट रिड्यूस कर लो तो और भी अच्छा है। सेकेंडली, फिर कुछ पेशेंट्स थोड़े से 35 के करीब होते हैं, या उनकी एज ऐसी हो रही होती है कि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता कि हम पहले वेट रिडक्शन का काम करें। वो साइकिल्स रेगुलराइज करना इन अ पेशेंट विद सफर्टिलिटी, विद द प्रॉब्लम ऑफ सफर्टिलिटी एज वेल, राइट। एक पेशेंट जिसमें पीरियड्स भी रेगुलर है और सबफर्टिलिटी भी है, उसके अंदर प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द सबफर्टिलिटी। वंस द सबफर्टिलिटी सॉल्व, तो फिर साइकिल का क्या। अब साइकिल पहले रेगुलराइज करने बैठ जाओ, उस दौरान वेट भी रिड्यूस ना हो, उधर से अब वो कंसीव नहीं कर रही बिकॉज यू आर गिविंग अप मे बी हार्मोनल मेडिसिन और समथिंग फॉर टू रेगुलराइज द साइकिल, तो वो और डिले हुई जा रहा है, एंड द प्रॉब्लम ऑफ fertility is there. So if a patient says that she wants to conceive and she's here with infrequent cycles, that wants to conceive वाली चीज is always given the priority in these types of patient, ठीक है। किसी डॉक्टर ने साहब, कहा है, सॉरी, लेट्रोजोल इज द फर्स्ट लाइन। यस, दिस अ गुड आइडिया। लेट्रोजोल पीसीओ में बेहतर, बिकॉज ये ओएचएसएस जरा कम करेगा पीसीओ में, लेकिन जी। लेट्रोजोल पे इतना फिलहाल गाइडलाइंस में इतना ज्यादा डायरेक्टली बहुत परसेंट। ज्यादा नहीं है, सो यू कैन चूज योर ओन मेडिसिन, शी इज राइट। कोई एविडेंस हार्ड बेस एंड में फास्ट गाइडलाइन नहीं आ गई कि होगा। जी जैस्मीन। मैम एविडेंस बेस में लेट्रोजोल का फर्स्ट लाइन लिखा है, एक दो जगह पर लिखा हुआ है, हुआ। और मुझे ऐसे लगता है इवन के लेट्रोजोल से आपकी ओएचएसएस भी कम होगा, और इसलिए अगर आपने करना चॉइस भी है, और अगर आपने एग्जाम में भी बोलना है, तो पहले लेट्रोजोल ही बोल दिया जाए तो बेहतर है। इट्स लेट्रोजोल इज सपोज्ड टू बी बेटर इन पीसीओ डॉक्टर पेशेंट्स, साहब, जी। ये क्लोमिड के बाद हम इसको कैसे देख रहे होते हैं कि फॉलिकुलर ट्रैकिंग करते हैं या नहीं करते, इसका रिस्पॉन्स हम कैसे चेक फॉलिकुलर ट्रैकिंग करेंगे ना, बिकॉज शी वांट्स टू कंसीव आल्सो। क्लोमिड अगर देनी है ना, तो उसमें आप कहोगे कि आई विल डू ओव्यूलेशन इंडक्शन विद क्लोमिफेन सिट्रेट, स्टार्टिंग विद द डोज ऑफ 50 milligram, and then increasing to 100 and 150 milligram in the next months, and will follow considering the medicine response in terms of ovulation as well as pregnancy. अब ये सेंटेंस तो एक है, लेकिन इसमें कोई 15 बातें कवर की है मैंने, ठीक है ना। यानी कि मैंने पूरी डोज अगले 3 महीने की बोल दी। मैंने स्टार्ट 50 mg से किया, फिर 100 mg, फिर 150 mg पे मैं गई। उसके बाद मैंने कहा कि मैं मेडिसिन का रिस्पॉन्स देख रही हूँ इन टर्म्स ऑफ ओव्यूलेशन एज वेल एज प्रेगनेंसी। अगर पहले महीने में ओव्यूलेशन अच्छी हो गई है, यानी 12th डे पे जाके फॉलिकल का साइज अच्छा अचीव हो गया, तो आई विल कंटिन्यू द सेम मेडिसिन इन द नेक्स्ट 2 months एज वेल इन द सेम वे। अगर फर्स्ट मंथ में ओवुलेशन अचीव नहीं हुई, तो नेक्स्ट में मैं 100 कर दूंगी और 150 कर दूंगी इफ नीडेड। और एक्सक्यूज मी, और अगर पहले महीने में प्रेगनेंसी होगी तो मेडिसिन का रिस्पॉन्स इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो आपने कहा कि मेडिसिन का रिस्पॉन्स दो तरह से आ सकता है, या ओवुलेशन से या प्रेगनेंसी से। तो स्टेटमेंट तो ये एक ही है, मतलब वही बात है, बिकॉज टाइम कम होगा अब टॉक्स में आपके पास। 10 मिनट में आपने बातें कवर करनी है। अगर इसी बात को अगर आप ऐसे बोलना शुरू कर दोगे कि आई विल स्टार्ट हर विद द 50 milligram dose starting from the second day to 6th day, and we'll get her ultrasound done on the 12th day to see the size of the follicle, and if the size of the follicle is not really reached to the required level, then in the next month I will give her 100 milligram from the second day to the 6th day, and we'll see the size of the follicle on the 12th day, and if it is not there, then matlab it's taking so much of time and it's not covering everything as well. इंस्टेड अगर आप इसी चीज को एक एलाबोरेटेड तरीके से, एग्जामिनर को समझ आ जाएगा आप क्या कह रहे हो, और वो एक सेंटेंस में सारी चीज कवर हो गई है, ठीक है। तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस बना के याद करनी। मैम ये क्लोमिफेन रेजिस्टेंट केसेस में फिर हम क्या दे सकते हैं इनको?
फिर हम डोज although हम not मेडिसिन चेंज करते हैं ना। frequently. हम अगर क्लोमिफेन से नहीं हो रहा तो फिर हम एरोमेटेज इनहिबिटर से करेंगे, अगर एरोमेटेज इनहिबिटर से नहीं हो रहा तो फिर HMG का इंजेक्शन से करेंगे, मतलब वो तो फिर मैम वो गोनाडोट्रोपिन का रोल है इसमें ना? जी जी बिल्कुल रोल है, लेकिन अगेन दे आर वेरी रेयर केसेस। एग्जाम में रेयर केसेस पे बात नहीं होती है, एग्जाम में उन्होंने आपको उसी पे ये मैं आपको कह रही हूँ, पहले जो 3.5 से 4 मिनट शायद लगेंगे आपके हिस्ट्री और एग्जामिनेशन में इन दिस सिनेरियो PCO के पेशेंट में, PCO तो है ही सारा क्लिनिकल, उसमें ही फैसला हो जाएगा कि आपके इसमें कैसे स्टेशन में मार्क्स आने हैं। ठीक है ना, तो एग्जाम में रेयर चीजों पे तो बात बहुत ही कम बात है कि वो रेयर रेयर थिंग्स डोंट हैपन इन एग्जाम एट ऑल। लाइफ में भी रेयर थिंग्स रियली हैपन वेरी रेयरली। मोस्टली आपको जो एक 95% चीजें आप डील कर रहे हो ना एग्जाम में, उस पर असेस होगा। ठीक है, तो आपने उसकी तैयारी लेकिन बहुत अच्छी करके उसमें फिर नहीं आपको किसी चीज की गुंजाइश होगी। Ma'am, ठीक I है, want to और ask that should we tell the side effect of medication also? Like, नॉट रियली। देखो बात ये कि अगेन जो चीज रेयर है उसके पीछे नहीं पड़ना, उसकी तरफ भी नहीं जाना। okay, अगर आप क्लोमेट की बात कर रहे हो और आप ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन में कितना कॉमन है, इट्स रेयर, इट्स लेस देन 10% आई थिंक, और बहुत सिवियर वाला तो 1% से भी कम है। तो अगेन आप उसके पीछे अब वही बात है, जब हम पेशेंट को स्टार्ट भी कराते हैं तो हम बहुत ज्यादा OHSS की कहानी नहीं लेके बैठ जाते मैम मुझे ओपीडी में। लगता है इसमें जो है उसको मल्टीपल प्रेगनेंसीज का बताना ज्यादा फ्रूटफुल है एज कम्पेयर टू साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। यस, बट एग्जाम में उसकी तरफ भी ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ठीक। जो चीजें रेयर है उस पर ma'am, टाइम नहीं वेस्ट करना। ma'am, we can say that if the patient of the PCO get pregnant, so we should also screen the during the यस pregnancy and tell the patient about the OHSS and about the यस, we इफ should शी screen गेट्स for the प्रेग्नेंट diabetes. वी शुड रूल आउट, यस गुड गुड राइला, इफ if patient gets pregnant then you can rule out OHSS, then you can rule out multiple pregnancy, वो सारी चीजें फिर इम्पोर्टेंट है। Okay, किसी ने ma'am. क्वेश्चन किया if the same patient was there who was unmarried or if she comes with infrequent cycles। अच्छा, irregularity की बात भी आप infrequent बोला करो, जिसमें infrequent है वो उससे ज्यादा आपको क्लियर हो जाता है। तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर किसी ने एक्सप्लेन करना क्विकली वो बता दो। यानी कि किसी पेशेंट मैम में वांट्स टू कंसीव वाला मसला नहीं है, फर्टिलिटी इशू नहीं है, बट इनफ्रीक्वेंट साइकिल्स है, तो क्या मैम तो करेंगे? उसमें हम पे डिटेल विल टेक डिटेल हिस्ट्री ऑफ infrequent वही। cycles, that whether she is having amenorrhea or she is having infrequent cycles. If she हम्म। hasn't these cycles for the last 4 or 5 months, then we can give her withdrawal bleed by progestogens, and ठीक है। uh, other options are combined oral contraceptive pills, and in a देखो married सबसे patient, पहले तो आप मैम उसको वो पेशेंट IUCD विड्रॉल चलेगा। करा दो। ठीक है सुंबल, विड्रॉल करा दो। विड्रॉल करा के ठीक है। आपने उसके पहले तो वेट रिडक्शन पे जोर लगा देना। वेट रिडक्शन हो जाएगी तो उसके वैसी साइकिल्स ठीक हो जाएंगे। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि फिर आप देखो कि उसके सिम्टम्स क्या है, इनफ्रीक्वेंट साइकिल्स के साथ क्या उसका एक्सेसिव हेयर ग्रोथ का भी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर अकॉर्डिंगली अपनी मेडिसिन सेलेक्ट करो। ठीक है ना, अगर आपने कुछ हार्मोनल देना ही है, बट फर्स्ट मंथ्स में अगर आप उसे सिर्फ मेटफॉर्मिन और वेट रिडक्शन पे ही कर दोगे तो भी काफी फायदा हो जाएगा। और अगर उससे भी नहीं फायदा हो रहा देन यू कैन गिव हर हार्मोनल मेडिसिन ऑल्सो, रूलिंग आउट फ्यू सिम्टम्स, पर्टिकुलर सिम्टम्स जिसके लिए उसे ट्रीटमेंट चाहिए होगी। Ma'am, for मैम every patient who has BMI more than 30, so we should do the weight reduction with metformin, or we should start with the lifestyle modification like exercise, diet, लाइफस्टाइल and then मॉडिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट, बट इन PCO मेटफॉर्मिन का एक रिकमेंडेड रोल है, सो you can give metformin with weight reduction। अगर आप सिर्फ weight reduction, आप can discuss with the patient about side effects of the metformin, but आप उसको weight reduction के साथ भी metformin start करा सकते हो, especially if she is a diagnosed case of PCO। क्लोमिफेन रेजिस्टेंस मैम हम 3 महीने बाद कहेंगे कि अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, और क्लोमिफेन 150 पे भी अगर नहीं रिस्पॉन्स आया तो फिर आप उसको फॉर रेजिस्टेंट 3 मंथ। कहोगे, फिर आप उसे यस 150 mg तक डोज चली गई और नहीं बना तो फिर और मैम क्लोमिफेन फेलियर आफ्टर 6 मंथ्स की बिल्कुल ओव्यूलेशन हुई है एंड शी हैजंट कंसीव्ड, या वो भी यस 3 मंथ। ओके वो 6 months। ठीक।
ठीक है, चलिए गुड। क्योंकि अगर किसी के मेडिसिन का रिस्पांस अच्छा आ रहा है ओवुलेशन के पॉइंट से, यानी कि ओवुलेशन हो रही है, तो आप उसको 6 मंथ तक कंटिन्यू करो, ताकि वो फिर देयर आर चांसेस दैट शी कैन कंसीव। Ma'am, we should say to the examiner that my aim for my PCO patient is to reduce the weight, and my ideal BMI for the fertility is less than 30. So I will start for the weight loss for the first 3 months, and I will take the help वेरी of गुड, metformin in this along with exercise and diet. Then we will परफेक्ट। switch on to the clomiphene citrate. For the ovulation induction, I will start from the 50 mg, then in the next cycle 100, and then 150. And if still the patient will not respond, then I will see that if the patient will not get pregnant or there is failure of ovulation, then I will discuss with the patient about the another options like IVF, like this, ma'am. नहीं, अगर 3 मंथ्स में क्लोमिड से रिस्पॉन्स नहीं आया तो फिर आप यू विल चेंज द मेडिसिन। उसकी ओवुलेशन तो कराओ ना, ओवुलेशन करा के उसे डिक्लेयर करो कुछ और। मैंने भी पूरा आपको बताया ना। सबसे फर्स्ट 3 मंथ्स वेट रिडक्शन, राइट, टेलिंग हर द इम्पोर्टेंस और द रिजल्ट दैट वी कैन गेट आफ्टर वेट रिडक्शन, यानी कि if she reduces 10% of weight in the 3 month time, she can, there are 90% chances that she can conceive, right? If she doesn't conceive in 3 months but the weight has been reduced, then I will start her with ovulation induction. If you want to start first with the clomiphene citrate, then I will start with the clomiphene citrate, starting with a dose of 50 milligram and increasing to 100 and 150 milligram in the subsequent months if needed. And we'll see the response of the medicine in terms of ovulation as well as pregnancy. If neither of these occur, if ovulation occurs with clomiphene, with any of the dose, either 50, 100 or 150 milligram, I will continue the same dose for 6 months and will explain to the explain the couple about the fertility days. If she doesn't conceive despite having good ovulation in the 6 month time, then I will give them other options that will include the artificial reproductive techniques, और उसके अंदर फिर आगे जो आपकी options आती हैं। ठीक है Okay, ma'am. Thank मैम you. मुझे एक सवाल पूछना था। जी। मैम इसको डायरेक्ट हम सिर्फ क्लोमिफीन पे डाल के छोड़ देंगे या फिर हमने हर मंथली इसका जो है वो 12 डे पे साइकिल करा It के चेक depends. करना है? It depends. For the initial 1-2 months, you can check and you can tell her to take for the next 3 months and wait fertility period. लेकिन अगर आप हर महीने कराओ, मेरा ख्याल है वैसे जो अगर आप बुक्स के हिसाब से बहुत ज्यादा चलो तो हर महीने ही फॉलिकुलर ट्रैकिंग करा लो, ताकि यू शुड बी वेरी वेरी श्योर कि आपने 6 मंथ्स का प्रॉपर ट्रायल दिया है। और अगर मैम ये मतलब इसका फॉलिकल मेच्योर हो जाता है तो हमें इसमें IVF इंजेक्शन के बारे में बताना है कि फिर हम वो लगवाएंगे और फिर उसका नहीं, प्रोजेस्टेरॉन का जो सपोर्ट देते हैं लास्ट मंथ्स में? इस पे नहीं जरूरत, इतनी डिटेल में बोलने की जरूरत नहीं है। सही, वो तो ओके। अगर आप IUI या उसकी बात पे जाओ तो फिर देख सकते हैं, अदरवाइज इफ फॉलिकल इज देयर तो बस फिर फर्टिलिटी डेज वेट करें। कुछ पुरानी बुक्स में ना ये क्लोमिड के साथ भी इन्होंने HCG इंजेक्शन का दे दिया है कि फॉलिकुलर ट्रैकिंग नहीं, कर। स्पेशली ना बोले, वो अगर बोलना है बोल भी दें, बट ना नहीं बोलेंगे तो वो जरा ज्यादा प्रॉपर, बिकॉज वी डोंट नॉर्मली गिव HCG इन एवरी साइकिल when a patient who is on oral ovulation reduction, right? Ma'am, and use of folic acid during the preconception period, हाँ, तो वो तो as देना the ही है ना। patient is infertile. Okay, okay. And ma'am, as I can say that as my patient is a patient of infertility, so she must be in stress. So I will connect the patient to the psychological counselor. वो किया था उन्होंने। ठीक है, सो गुड। Okay. चलो, आई थिंक कवर हमने कर लिया है। सिनेरियो बहुत अच्छा था, इट वाज अ वेरी टिपिकल सिनेरियो, लेकिन इस तरह के बिल्कुल इसी तरह के एग्जाम में आते हैं। बट उसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि ज्यादा चीज को आपने थोड़ा करके कैसे बोलना है जिसमें हर चीज ही कवर हो जाए, और वही चीज इतना सुनने वाले को भी और एग्जामिनर को भी अच्छी लगती है, और उन्हें एक आपके सेंटेंस से ही समझ आ जाता है कि यू नो द होल थिंग। और बिकॉज ये वो सिनेरियो जिसमें हर कैंडिडेट बहुत सी तैयारी करके जाता है, हर एक को इसका पता है इन टॉपिक्स का, इन डिजीजेस का, बिकॉज वी आर डीलिंग विद दीज पेशेंट्स थ्रू आउट। आप लोगों को जितनी पूरी ट्रेनिंग में हजारों ऐसे पेशेंट्स देख चुके हो, लेकिन इसको प्रेजेंट वहां कैसे करना है, पास वहां पे वही होगा या बहुत से नंबर वही लेगा,
जो कि इस पूरे को थोड़े में करके एक्सेलेंट तरीके से बोलेगा, राइट? सो इसकी प्रैक्टिस करनी है इस तरह के टॉपिक में। ठीक है, सो यस इंशाल्लाह, मैम। सो विल मीट अगेन नेक्स्ट संडे। आप कर लो वॉलंटियर और टॉपिक प्लान कर लो और मुझे बता दो।